मैं तो बात करते रहता हूँ फ्रॉम माय प्लेस टू डिलीवर. सो दिस इज फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी. ये लोग का स्ट्रगल क्या है मैं अब समझ रहा हूँ. पीछे लोग कितनी मारामारी करते होंगे, क्या क्या होता है. एंड सो वी आर लाइव. गुड. Okay, YouTube audience, namaste, welcome to YouTube, and namaste to this week's Happy Minds. And this is, I want to see, beta. Okay, you don't have a back end camera. Okay, see, should have had one more laptop. Okay, screen. अच्छा ये कमेंट्स यहाँ आएंगे. अच्छा ओके ओके ठीक है ग्रेट. चलो दिस इज हैप्पी माइंड्स नंबर. दिस इज हैप्पी माइंड्स नंबर 1. The way we are struggling with things, it seems this is the first happy minds of our life, you know. एक नया लेते हैं ना, पहली बार लेते हैं. So all of you watching me online and live there and on YouTube and Zoom, this is the first time we are trying a hybrid model. मेरे सामने ऐसे लाखों की जनता बैठी हुई है. They have come, they have struggled all the way from their homes. बारिश में कुछ लोग तैर के आए, स्विमिंग करके आए, बाढ़ आई हुई है पुणे में. So they have come all the way from their homes. And कुछ लोग तो भीगे हुए हैं, पूरा फ्लोर में पानी वानी आ गया इधर. So I have a hybrid model. We have people here. जितने भुक्कड़ लोग थे वहां चुके हैं, because we have so सब ताली बजा रहे हैं. सर आपने हमें पहचान लिया. You know this is what we are. तो हमने ऐसी डाला कि चाय और पकौड़े मिलेंगे. तो जितने भुक्कड़ ऑडियंस थी पुणे की वो आ चुकी है इधर खाने के लिए. कुछ रास्ते में होंगे. And this is Happy Minds number 1158 for all of you who have joined me online and YouTube में जिन्होंने join किया. So I'll be kind of be with you, and I'm going to be there with my audience here because दोनों जगह मुझे ध्यान देना है. So when I'm not looking at you, this means ऐसा नहीं कि मैं घर में कुछ और या अपने साइट पे कुछ और काम कर रहा हूँ. So I'm looking at the other audience which is present here. Today we will have a round of sharing. We have we have come back last week from a beautiful spiritual retreat. And we're going to be having a round of sharing. I think that's so wonderful that every time we have my life, तो my life की अच्छी sharing होती है. So I'm sure आप लोग जो online में हैं, you will also get to listen to that sharing. And of course, जैसे मैंने बताया कि happy minds तो एक मुद्दा है, एक बहाना है. असली कारण तो पकौड़े हैं आज के happy minds के. So people are waiting for that. They want HM to get over and then get into that. तो बड़ा कल से प्रिपरेशन चल रही है. रचना has been preparing, दाल वाले पीसी गई है रात को. अंजू is there. I think she has come. ऐसा मुझे बताया गया. She is going to be there with her मिर्ची का कुछ सामान वान लेके आ रही है. बड़ी बड़ी मिर्ची लेके आ रही है to ensure that people जिनके बहुत मिठास है लाइफ में, उनकी लाइफ में जो है कुछ बुरी मिर्ची डाली जाए. Right? So that's a love from everybody that जब भी ऐसा कुछ हुआ है where we have had a HM with some monsoon dhamaka. So we have got so many Chrysalians who come in. तो कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है. So today also we'll have something beautiful happening. I was thinking मैं आपसे क्या शेयर करूं. लाइव ऑडियंस भी आई है, ऑनलाइन भी ऑडियंस है. तो एक सोच जो मैंने बहुत पहले समझी, सीखी, somewhere in 1998 when I started my career. तो मेरे कुछ बेसिक लाइफ के फंडामेंटल्स जो मैंने पकड़े और जिए, तो उसकी हल्की एक झलक आपको देता हूं. And see if you can grab on it and you can make it a part of your life. There is something called a belief and there's something called a reality. और अक्सर हम लोग जो है ना beliefs में जीते हैं और reality से शायद हम अटक जाते हैं. Belief is nothing else but एक दायरा होता है. And बहुत सालों तक मैं अपने belief systems पे ही काम करते रहा. And they helped me a lot. बहुत उन्होंने help करी because एक belief एक धारणा हो गई, एक दायरा हो गया जिसके अंदर आप ऑपरेट करते हो. बट फिर मुझे एक दिन ये भी समझ में आया कि बिलीव्स ऑल्सो बिकम योर पॉइंट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन. कि जो धारणा है, क्या उसके अलावा भी जिंदगी हो सकती है? आंसर है कि हो सकती है. क्या उसके अलावा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है? आंसर है हो सकता है. तो जब मैंने ये देखा, समझा कि मेरी धारणाओं से अगर मैं जी रहा हूं तो इसका मतलब कुछ जीने से मैं चूक रहा हूं. सो कैन आई हैव अ बिलीफलेस लाइफ. एंड द बिलीफलेस लाइफ कैन ओनली हैपन इफ यू adapt the thought process and the life of a seeker. Because एक seeker जो होता है वो कोई धारणा नहीं रखता.
धारणा का मतलब क्या है कि एक बिलीफ का मतलब क्या है कि दिस इज द वे द वर्ल्ड इज, दिस इज द वे पीपल आर, दिस इज द वे थिंग्स ऑपरेट। एंड वो किसी की बिलीफ पॉजिटिव हो सकती है, किसी की बिलीफ नेगेटिव हो सकती है, किसी की बिलीफ बड़ी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है, बट देन अगेन ऑल सेड एंड डन बिलीफ विल ऑलवेज बी अ लिमिटेशन फ्रॉम विद इन विच यू विल ऑपरेट। तो ये मुझे समझ में आया कि कैन वी ड्रॉप एज मेनी बिलीफ्स एज पॉसिबल, नॉट दैट वी कैन ड्रॉप एवरी बिलीफ, लेकिन कुछ अगर हम ड्रॉप कर सकते हैं तो उसमें जब ये कनेक्ट हुआ तो एक बिलीफ को जो मैंने ड्रॉप किया, एंड देन आई सेड लेट मी बी अ सीकर एज मच एज पॉसिबल। तो एक बात समझ में आई कि एक सच्चाई है जो हमें सामने आती है। तो एक बिलीफ है कि वी आर, अगर पूछा जाए कि हु वी आर, हम लोग क्या हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इफ आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, इफ आई वांट टू आस्क द ऑनलाइन ऑडियंस हियर, हु आर यू, तो आंसर निकलेगा, यू विल मे बी विल स्टार्ट विद योर नेम, आई एम सो एंड सो। And if I keep on asking you, who are you? So maybe you will drop your name and then maybe you will talk about, I'm so and so's son. I said, okay, usko bhi drop karo, then who are you? Then maybe you will talk about, I'm from so and so family. I said, okay, drop that also. That is not you. फिर आप उसको ड्रॉप करो, आप अच्छा आई एम स्टेट में आ जाओगे, maybe you'll come to your religion, maybe you'll come to the country, I'm a Indian, मैं भारतीय हूं। मैं कहूंगा ठीक है, उसको भी ड्रॉप करो। तो जब आपके पास ड्रॉप करने को कुछ नहीं आएगा तो आप बोलोगे मैं आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और मैं बोलूंगा उसको भी ड्रॉप करो, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट यू आर। एंड द मोर यू रियलाइज दैट दिस इज नॉट व्हाट यू आर, you will start realizing who you are. So this question which is there in the minds of all the people, who am I, तो उसके आंसर देने से पहले आपको ये पूछना है कि who am I not, more than asking मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं। जब आप मैं कौन नहीं हूं को ड्रॉप 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 करते रहोगे तो शायद मैं कौन हूं का रिफ्लेक्शन आना चालू हो जाएगा। एंड द डीपेस्ट पॉज, देयर इज नो आंसर टू दिस केस, टू हु एम आई। बट एक बात तो पक्की है कि मैं, मेरा जो नाम है वो तो मैं नहीं हूं, बिकॉज नाम तो मुझे दिया गया ना, आई वाज नॉट बोर्न विद अ नेम, इट्स गिवन टू मी, राइट? माय रिलीजन वाज गिवन टू मी, माय फैमिली वाज गिवन टू मी, माय कंट्री वाज गिवन टू मी। तो ये सब मुझे दिया गया, इसका मतलब जो दिया गया है वो तो मैं नहीं हूं। तो आप बोलोगे फिर आई एम माय बॉडी, तो वर यू बोर्न विद दिस 6 फीट बॉडी, दिस आल्सो यू एक्वायर्ड। तो फिर ये भी आप नहीं हो, बिकॉज ये तो आपने यहां आके लिया है ना। फिर आप बोलोगे अच्छा मैं बॉडी में नहीं हूं, तो फिर हूं कौन? तो आप बोलोगे अच्छा आई एम माय माइंड। And I'm talking to all of you in simple terms. Be with me, don't go into a spiritual different world. Stay in this world and listen to me. So when आप बोलोगे अच्छा फिर तो फिर माइंड हूं, तो आपके माइंड में क्या भरा है? ये थॉट्स कहां से आए? तो एक्सपीरियंस तो आपने एक्वायर किया है, तो जो एक्वायर किया तो फिर वो तो आप नहीं हो, ये तो लिया है ना बाहर से। आज जो यहां चल रहा है, जितना आपके मन में गोंधल चल रहा है, all that which is happening inside is happening because of whatever you gathered. तो किसने कुछ बोला वो मन में चल रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया तो आपके मन में चल रहा है, किसी ने अच्छा कर दिया तो वो मन में चल रहा है, किसी ने अच्छा नहीं किया वो भी मन में चल रहा है, आपके सपने आपके मन में चल, तो दिस इज नॉट व्हाट यू आर, दिस इज आल्सो एक्वायर्ड। तो आप बोलोगे सर मैं बॉडी नहीं हूं, मैं माइंड नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? बस यही सवाल है। वो आप कौन हो यू डिसाइड, बट ये तो नहीं हो, अगर ये मालूम पड़ गया तो शायद एक दिन आप कौन हो आपको समझ में आएगा। तो if you were to understand this, that I'm just taking you one step ahead, I will not make it deeper, I've just come from my life, तो वो फ्लेवर तो रहेगा। तो I just want to make you understand this, कि अगर आप ये समझ सकते हो कि कोई भी काम करने के लिए we need tools, yes or no, है? तो अगर आपको कार्पेंट्री करनी है, you can't do with your bare hands, कि आप हाथ से लकड़ी काटोगे, आप हाथ से कील ठोकोगे, तो you need some saw, आपको आरी चाहिए, आपको हथौड़ा चाहिए, आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो आप उसकी वजह से you will be able to do that work properly, yes or no, right? You need to compute, calculate करना है, you need a calculator, एक टूल लगता है अपने। So कोई भी काम करने के लिए जो हम इस दुनिया में करते हैं उसके लिए हमें एक टूल लगता है। Your sink is leaking, उसको अगर ठीक करना है आपने, so you need some kind of wrench, you need some kind of tool to make it all right. So what are tools?
टूल्स जो है ये हमें हेल्प करते हैं उस कार्य को अच्छे ढंग से करने में। इमेजिन करो अगर वो स्क्रू ड्राइवर नहीं होता, तुम स्क्रू कैसे कसते? तुम अपने हाथ से कसते, हाथ में इट वुड पेन टू एन एक्सटेंट विच इज अनबेरेबल, खून निकलता, क्या क्या हो जाता तुम्हारे साथ। बट दैट स्क्रू ड्राइवर मेक्स इट सो सिंपल। और आप मेरे साथ हो, ऑडियंस तुम लोग मेरे साथ हो कि नहीं? तुम लोग कहीं निकल लिए वॉक पे? ऑनलाइन ऑडियंस, यू देयर विद मी? YouTube and Zoom audience, give me a yes if you're there. मैं ऐसे ही करता हूँ ना जब तुम ऑनलाइन देखते हो तो so this is what I do. So stay alive, keep breathing. हाँ, सांस लेते रहना, बाकी मैं देख लूंगा. So we all need tools to operate in a certain way. And the moment we accept, now listen to me with absolute attention like never before. When we accept कि टूल्स है और टूल्स की वजह से मैं काम अच्छे ढंग से कर पाता हूं, our willingness to accept tools or to use tools increases. जब मैं ऐसा मान लेता हूं कि टूल्स की वजह से मेरा काम अच्छा हो जाता है, तो मेरी चाहत, मेरी काबिलियत टूल्स को एक्सेप्ट करने में, कोई भी काम करने के लिए ज्यादा हो जाती है. यस और नो? वी डोंट रिफ्यूज अ टूल, वी डोंट से हमें नहीं चाहिए, हम चाहिए होता है, बिकॉज इनफैक्ट वी हंट फॉर टूल. कोई भी काम करना है सबसे पहले हम कहते हैं टूल लेके आओ, कैसे करेंगे इसको. अब यहां तक अगर हम रेडी हैं, अग्रीड हैं, I want you to understand and I want you to hold on to this because this is reality. I'm not saying have a belief. I'm saying this is reality. इसको मानो कि reality क्या है. ये शरीर एक टूल है, ये आप नहीं हो, एक टूल है. ये माइंड आपका एक टूल है. And the day you accept this and you start living your life like this, कि ये तो टूल है, ये भी टूल है, you will not get connected to it. So when you use a screwdriver, आप जब कसते हो कोई चीज, do you give it a चुम्मा? तो मैं हूं, तुम उसको ऐसा मतलब कनेक्ट हो जाते हो कि भाई भाई इसको कुछ नहीं होना चाहिए, या फिर you connect to an emotional extent to it where that becomes your life. You know it's a tool, I've used it, I'll keep it there. हाँ भाई, ढंग से रखूंगा, ढंग से इस्तेमाल करूंगा, उसकी जगह होनी चाहिए. I'll keep it properly because I need to use it again. Am I right or not? In the same way, this body is a tool. Don't get so attached to it that you make it risht-pusht, healthy, beyond being healthy, and you make it unhealthy. So use it in a way where this makes you live this life in a wonderful way. जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करोगे, ये टूल है, तो इस टूल के द्वारा, इस टूल के माध्यम से हमें करना क्या है? जैसे हथौड़े से हमें वो कील ठोकनी है, हमें इस टूल से इस धरती पे रहना है. Isn't making sense? तो अगर ये टूल से हमें इस धरती पे बढ़िया काम करना है, should we not take care of this tool and should we not use it to the fullest? तो जो हम देखते हैं कि हमारा स्क्रू ड्राइवर है, अगर उसका आगे से ब्लंट हो गया है, we know we cannot use this properly, तो हम उसको थोड़ा शार्प करते हैं, उसको हम ठीक करते हैं, राइट? हम कहते हैं इससे स्क्रू तो कैसे. In the same way, this body is nothing else but a tool. This mind is nothing else but a tool. लेकिन क्या है, ये टूल आपके कंट्रोल में नहीं हो रहा है. ये कसे जा रहा है, कसे जा रहा है, कसे जा रहा है, ये अपना भी ओपन करे जा रहा है, करे जा रहा है. So what if this was in a control? And this can only be in a control if you start saying, start thinking, start accepting this fact. This is a tool which is for my usage. This is not a tool which will use me. This is a tool which is for my usage. This is not a tool which will use me. Imagine करो, सुबह सुबह स्क्रू ड्राइवर आता है, उठ चल कस. The screwdriver comes to you, say उठ, अभी वो कस, अभी वो कस. नहीं कस, नहीं कस, तेरा काम है वो उसको टाइट करने का. Imagine a hammer comes and says, pick me up, hammer. What will you say? Madness तो बोलोगे ना उसको, क्या पागलपन चालू है. आप कहते हो मैं तभी यूज करूंगा जब मेरी इच्छा होगी, मैं तभी यूज करूंगा जब मुझे ठोकना होगा. That's what you will say to the hammer. In the same way, मैं इसको तभी यूज करूंगा जब मुझे यूज करना है. But since we don't see it as a tool, we see it as us. उसको देखा कि ये तो मैं ही हूं, तो फिर जब मैं ही हूं तो फिर मैं ही चल रहा हूं, मैं ही सोच रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं. Can you just segregate yourself? It requires huge discipline. ये मेरी बात आपको लॉजिकली पट रही होगी, लेकिन
करने में आप उतने ही दूर हो जितने यहां से चाइना दूर है। चाइना में नजदीक बोल दिया, उतने ही दूर हो जितना मोक्ष दूर है। So there's a huge difference between understanding and doing it. But जिसको अगर रोज आप ऐसा मानते रहोगे, एक्सेप्ट करते रहोगे, अपने आप को उसमें ढालते रहोगे, तो एक दिन आएगा where you will start seeing your mind, your body as a tool to operate and to live in this beautiful world. Just like we go to a city to stay for a few days, we have come to this wonderful place called Earth to visit for a few days. And the more you segregate, the more you separate yourself from your body and your mind, बाकी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, your जो चीज आपने सोचा कि ये मैं हूँ, मेरा घर मैं हूँ, कुछ तो कहते हैं मेरी गाड़ी मैं हूँ, so they become so connected with that. तो मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके रिश्तों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सबसे जो आप बोलते हो कि ये मैं हूं, मैं तो उसको भी ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ। तो जिस दिन ऐसा आप ड्रॉप करने के काबिल हो जाओगे, तो आपको समझने आने लगेगा कि मैं कौन हूं। Because this question which people ask time and again, who am I? Nobody in the world can tell you the answer. But yes, there are gurus, there are people, there are संत हैं जो सिद्धि प्राप्ति है, वो बोल सकते हैं कि ये तो तुम नहीं हो, ये तो तुम नहीं हो। उतना ही समझ में आ गया तो शायद जो हम हैं वो दिखना चालू हो जाएगा। So with this clarity which I got some back, I also understood we got to operate in this world. We got to live in this world. And we got to live with people around. तो लोगों के संदर्भ में, तो this was the first part of today's action. जितने लोगों को समझ में आया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया, God bless you. So may God give you some insight before we all leave this planet. दूसरी चीज which you will hold on to, which you will be able to connect, because वो आपके जो आपके जीने का तरीका है उससे बड़ी कनेक्ट करेगी। कि हम लोगों के संदर्भ में हमारी जो समझ है वो थोड़ी और पक्की होनी चाहिए, क्योंकि हम जी तो लोगों के साथ रहे ना, वी आर स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड विद पीपल। अगर हमें लोगों से अलग कर दिया जाए, हमें अगर लोगों से जुदा कर दिया जाए, एंड वी मेड टू स्टे अलोन even for a week or 10 days, you will see that life will not be that exciting for you. तो हम तो हमेशा लोगों से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, and we want the company of people. ये सुनो, जब हम लोगों के साथ होते हैं तो होता क्या है? When we are with people, what happens to us? चलो, you also can answer online people. हाँ जी, what happens when we are with people? You want to express, ठीक है, sharing होता है, okay, बहुत बढ़िया, और इंटरेक्शन होता है, ठीक है, हाँ, और क्या होता है? लर्निंग होता है, हाँ। Because he says अकेला मैं जो क्या मारूं? Vinayak says, one from the audience is Vinayak. He's a very serious guy. Mother, you will always see him dead serious. He practices death. Actually, some people are like that. कि उनको देखो तो लगता है शायद ये डेथ की प्रैक्टिस कर रही है। रिहर्सल होता ना, कि अभी जैसे when we would take part in dramatics in school, तो ड्रामेटिक्स में क्या करते थे कि you would rehearse, keep on rehearsing, because एक दिन फाइनल शो होने वाला है, राइट? तो कुछ लोगों के चेहरे देख के लगता था यार ये कितना डेथ का रिहर्सल कर रहे हैं, कि जब मैं मरूंगा और मैं ऐसे लेटूंगा तो मेरा चेहरा ऐसे दिखना चाहिए। तो पूरे सालों साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल वो प्रैक्टिस करते रहते हैं कि लास्ट डे का अपीयरेंस बढ़िया होना चाहिए। So विनायक says कि अगर मैं अकेला रहा तो मैं जोक किसको सुनाऊंगा, राइट? तो ये तो वही बात होगी, जोक सुनाए फिर उल्टी साइड गए, फिर हंसे, फिर वापस आ गए, फिर जोक सुनाया, फिर वहां गए, सुनाया। So we need people to share a joke. We need people to share our intelligence, right? A lot of people have written something. Somebody said, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, support system बोला कि it's an absolute right. हाँ? सर जस्ट बकवास के लिए भी लोग चाहिए, बकवास से टाइम पास करने के भी लोग चाहिए। गजब है तुम्हारे चाहने वाले कि तुम्हारी बकवास के लिए भी टाइम है उनको। सो शो ऑफ के लिए भी लोग चाहिए, अरे तेरी की, ओह माय गॉड, बॉन्डिंग के लिए लोग चाहिए। ऑनलाइन ऑडियंस इज ऑसम। क्या क्या ये लोग, क्योंकि बोलने में थोड़ा एनर्जी लगती है ना, टाइप करने में क्या लगता है?
So so we all need people, right? जब ये बात फैक्ट है, फॉर वॉट एवर वी नीड पीपल टू इंटरेक्ट, टू बॉन्ड, टू लर्न, टू ग्रो, टू जोक, टू फील गुड, टू एक्सपीरियंस इमोशंस, ये सब जो है, तो कभी सोचा आपने कि हाउ डू आई बिकम मोर लाइकेबल? Because that's what you want to be with people, but somewhere we miss out on this very thought that how can I become more likable? And as a result, when we don't understand how do we become more likable, और हमारी चाहत तो है कि लोगों के साथ समय बिताना है, लोगों के साथ रहना है, लेकिन हम कुछ बेसिक क्वालिटीज ले नहीं आ पाते अंदर जिससे हम लाइकेबल बन जाएं. As a result of that, we miss out on some beautiful relationships, and we also miss out on reaching out to a lot many people. So there are some evergreen principles of affinity. Some evergreen principles. Evergreen मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा ये प्रिंसिपल्स रहेंगे. इसमें ऑनलाइन वो ठीक है, सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है. तो एवरग्रीन का मतलब है कि इट इज देयर फॉर लाइफ. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. देयर आर सम एवरग्रीन प्रिंसिपल्स ऑफ एफिनिटी. तो एवरग्रीन का मतलब क्या हो गया? लाइफ लॉन्ग. जब तक हम हैं, ह्यूमैनिटी है, तब तक वो प्रिंसिपल रहेंगे. सेकंड, हमने बात करी प्रिंसिपल्स मतलब दे आर प्रिंसिपल, दे आर फंडामेंटल्स. एंड एफिनिटी एक और वर्ड है इसमें. एफिनिटी का मतलब क्या है? एफिनिटी इज लाइकेबिलिटी. द एवरग्रीन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइकेबिलिटी मतलब यू बिकम लाइकेबल. आप लवेबल नहीं, उसके लिए बड़ा कांड करने पड़ता है. लाइकेबल बिकॉज लविंग स्टार्ट्स विद लाइकिंग. जब तक तुम्हें वो लाइक ही नहीं करेगा तो लव तक कहां पहुंचोगे तुम लोग, राइट? सो इट ऑल स्टार्ट्स विद लाइकिंग. आर यू लाइकेबल? And many people unknowingly, when they don't understand these principles, they become unlikable. और उनको समझता नहीं है. अच्छे इंसान है बट अनलाइकेबल है. तो अच्छा होना इज अ क्राइटेरिया, बट लाइकेबल होना इज अ डिजायर which we can have. Because till you don't do the right things will not happen to you. आपके सिर्फ अच्छा होना is not enough. You got to be much more than अच्छा होना. For example, आप बड़े अच्छे हो और आपका एक बगीचा है, गार्डन है, आप अच्छे हो, but you don't water your plants. आप अच्छे हो. Will your garden survive? No. तो आप अच्छे हो, लेकिन जो राइट थिंग है वो तो करना ही पड़ेगा ना. आपको गार्डन को पानी देना पड़ेगा. तो अच्छाई के साथ जो एक्शंस होने चाहिए वो जरूरी है. You got to do the right things. So for people, you got to have the right kind of approach to them to be likable. और बड़े सिंपल है. आप लोग सब कहीं ना कहीं जी रहे हो, किसी ना किसी रूप में जी रहे हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने पकड़ा नहीं है यार ये दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक मी लाइकेबल. ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कोई चालबाजी नहीं है कि लोगों की लाइकेबिलिटी, लोगों का लाइकनेस आप ले लो. ये चालबाजी नहीं है. ये सिंपल फैक्ट्स हैं जो होने चाहिए. Should I share a few with you? Yes. पक्का, मतलब अगर चाहे तो मुझे बताओ. ऐसा कुछ मजबूरी नहीं है कि अब आए हैं सर कभी बता ही दो यार. हाँ जी, ऑनलाइन ऑडियंस कुछ बताओ क्या? हाँ. सो टुडे आई एम टॉकिंग टू यू. मैंने आपको एकदम एक्सट्रीम्स पे लेके गया हूं. सो वन आई स्पोक अबाउट यू दैट हु यू आर. इट डजंट मैटर वेदर पीपल लाइक यू और नॉट, as long as you are clear about who you are. It doesn't matter. But still we are living in this world. Can we bring in certain things which will make people like us, right? Not by chalbaji, not by posing something which we are not. एक होता ना कि you become likable by perfume डाल ली. अरे नहा तो ले भाई. मेरा ऐसा कहना है in layman's language, आप नहाए हो, that is important. अब नहाने के बाद if you put some perfume तो अच्छी बात है. तो मैं उस परफ्यूम की बात कर रहा हूं. It is not a must to survive in this world, but it is good to have something extra. That's what I'm saying. From that perspective सही है. तो मुझे बिल्कुल वो कभी-कभी ऑनलाइन की ऑडियंस जो है ना, वो अलग ही ट्रिप पे चली जाती है. सर खुद का प्यार होना बड़ा जरूरी. मैं वो बात तो कह ही रहा हूं कि खुद से अगर प्यार नहीं है तो बाकी चीज बकवास है, और खुद को लाइकेबिलिटी नहीं है तो फिर बाकी बेकार है. लेकिन पहले खुद क्या हो ये तो जान लो. तुमसे लगता है कि तुम, एंड आई टोल्ड यू दैट यू आर व्हाट यू आर इज व्हाट यू आर नॉट. वो अभी लाइफ लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारे मन में रहेगा, फिर मैं हूं कौन? दिस इज व्हाट लाइफ इज.
So I planted something which will trouble you all your life. अच्छा मगर मैं शरीर भी नहीं है तो फिर मैं हूं कौन सा? बस now this is the right path. Keep on walking on this path. Keep on asking this question every day. Who am I? Who am I? Who am I? So coming back to the extreme end, the other end, we are living with the world. We are living with people. In this, अरे को बात वो एक हो जाती है. In this world which we are living with people. Can we, living with people, learn certain basic principles to become likable? Pehla principle, and these principles have been spoken about by many authors, many people. Have you been to a jail? Well, not because you did something wrong, but ऐसी कभी मिलने के लिए मन हुआ चले जाओ? नहीं, आप गए हो? क्या हुआ? कैसा रहा है एक्सपीरियंस? हाँ 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 हाँ. बट विमेन ऑर्गेनाइजेशन मेंस जेल में तो हॉरर तो होना ही है. हाँ. वो लोग इतना डर गए. The men in the jail, they said जिससे बच के आए थे वही आ गए इधर. I was going through a research. तो उस रिसर्च में ऐसी एक there was a visit to the jail. तो उस जेल में जब गए, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल. मैं उस प्रिंसिपल पे लाता हूं आपको कि पहला प्रिंसिपल टू बी लाइकेबल, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी. उस जेल में जब गए तो द रिसर्चर जो था वो मिला, बहुत से लोगों से मिला, एंड ही केम आउट वेरी सरप्राइज्ड कि 90% ऑफ द इनमेट्स इन द जेल जो थे उनको लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने कुछ गलत किया है. तो उन्होंने समाज पे लगाया कि दे वर रॉन्ग. किसी ने जज पे बोला उस जजमेंट गलत दिया, किसी ने बोला कि उसका लॉयर गलत था उसलिए वो अंदर है, किसी ने बोला उसको उकसाया गया, दैट्स व्हाई ही डिड इट. सो 90% पीपल सेड वी आर here because something, and they kept on criticizing the world around them, kept on condemning the world around them, kept on complaining about how things were in the life around. So या तो उन्होंने कंप्लेन करी कि भाई इसकी वजह से मैंने ये किया, या तो कंडेम किया किसी को कि यार ये गलत इसने किया, या क्रिटिसाइज किया कि यार इसका अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता तो फिर हम यहां नहीं होते. 90% people. And who are they? They're criminals. They're criminals. तो मेरा आपसे क्या कहना है, मेरा आपसे ऑनलाइन ऑडियंस, मेरा आपसे क्या कहना है? इवन व्हेन क्रिमिनल्स जिनको एज पर लॉ कन्विक्ट किया गया है, दे हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सम क्राइम, इवन दे डोंट वांट टू बी क्रिटिसाइज्ड. इवन दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट, इवन दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट. आप उनको बोलने से तुमने गलत किया, क्योंकि वो तो सुनने को तैयार नहीं, वो यार किसी और ने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया. वो खुद जो जेल में है वो भी कह रहा है कि सर मुझे आप क्रिटिसाइज मत करो, यू कांट कंडेम मी. तो एक नॉर्मल इंसान लाइक यू एंड मी, हाउ वुड वी फील इफ वी आर क्रिटिसाइज्ड? जो कह दिए उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, वो भी डिफेंड कर रहा है अपने आप को. तो एक नॉर्मल इंसान लाइक यू एंड मी, हाउ वुड वी फील इफ वी आर क्रिटिसाइज्ड? कि हमारे किसी काम को लेके हमारी गलतियों को ऐसा पिन पॉइंट करा जाए. हाउ वुड वी फील कि हमारे किसी बिहेवियर को लेके कोई कंप्लेंट करता रहे हमें बार बार? हाउ वुड वी फील इफ कोई ना कोई जो है हमें डाउन प्ले करता रहे, तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम्हारे बस का नहीं है. सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रिंसिपल्स टू बिकम लाइकेबल इज अवॉइड एज मच एज पॉसिबल criticizing, complaining, condemning people around you. Evergreen principle. और खासकर जो आपसे रोज इंटरेक्ट करते हैं उनको तो कम से कम कंडेम मत करो यार. चाहे वो टीम हो आपकी, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे रिलेशंस में हो. और आप देखो कि कुछ लोगों को इतनी आदत होती है क्रिटिसिज्म की, तो दे विल फाइंड अ फॉल्ट समवेयर. दे विल फाइंड अ फॉल्ट.
एंड आदत क्या होती है कि look at the way it is. A lot of people they had go into the state, then should we not find faults? You should. If you're a judge, right? If you go to a court, there's a judge. इसका मतलब क्या है? You go to a court and there's a judge. What does it mean? It means somebody, an authority has appointed, some institution has appointed that person, और उसको काम दिया गया है उस इंसान को कि भाई तुमने जज करना है, तुमने देखना है गलत क्या सही क्या है, राइट और नॉट. आपको किसने अपॉइंट किया है उस इंसान की लाइफ में? कुछ तो जज बन के ही घूमते रहते हैं पूरे, कहां जहीं जाओ जज आ गया. किसने अपॉइंट किया? सेल्फ अपॉइंटेड जज. एंड दे जस्ट कीप ऑन फाइंडिंग फॉल्ट्स. इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए. और जब आपकी आदत बन जाती है क्रिटिसाइज करने की, तो हमारा बिहेवियर क्या है? वी आर ऑल आउटसाइड वर्ल्ड पीपल, ऑल ऑफ अस. बट हमारे सारे सेंसेस जो है ना, दे आर इन द आउटसाइड वर्ल्ड. हमें बाहर दिखता है, हमें अंदर नहीं दिखता है. हमें बाहर, हमारे आंखों से हमें बाहर दिख रहा है, हमारे कानों से बाहर का हमें सुनाई दे रहा है. Right? It's only when you're quiet at times and you can listen to your heartbeat. Otherwise, you listen to other things happening around. तो आपको बाहर का टच हो रहा है, आपको अंदर का, you can't open it and touch your heart inside. You can't touch. आपकी स्किन बाहर की है, आपकी आंखें बाहर की हैं, आपके कान बाहर के. So all your senses are projected outwards. तो जब आपकी आदत होगी है क्रिटिसाइज करने की, और क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? कहीं गलती पकड़ने की, तो आप गलती अंदर नहीं पकड़ते हो, आप गलती पकड़ते हो बाहर. बेटे देख, इसका यहां से तो है, वहां से बड़ा, समथिंग इज रॉन्ग विद इट, चेक. वहां से हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा, तो आप गलती बाहर पकड़ते. मैक्सिमम है. अच्छा, माइक की गलती पकड़ ली हमने क्या? चेक. हेलो, हाँ अभी आया. तो हम गलती बाहर पकड़ लेते. तो जिसकी आदत है गलती बाहर पकड़ने की, वो दिन भर में जब तक वो कहीं गलती ना पकड़ ले, उसको रात को नींद नहीं आने वाली. एंड देन ही सेज, यार जनता लाइक नहीं करती मुझे. लाइक क्यों करेगी? आपके साथ बैठ के आप क्या करते हो? Either you are criticizing somebody, either you're complaining to that person about him or about something else, or either you're condemning. पहला principle, please stop. There are 3 C's of your life. पहला C, criticize. Second C, condemn. Third C, complain. ये बंद कर दो, या avoid as much as possible. avoid. और करना ही है, so let's see from some faults inside and we work on it. Number 1. Number 2, which is even a much more beautiful principle. Always give sincere and honest appreciation. Always give sincere and honest appreciation. Appreciation, और हम लोग देते हैं, but many times you will see your appreciation is bordering around flattery. Flattery और appreciation में क्या फर्क है? Flattery comes from here. Appreciation comes from here. Flattery is for that moment, you want to make the person feel good. But appreciation is when you think, you go beyond, and you actually identify what is good in that person. That is what appreciation is. तो जिनको कुछ समय के लिए लोगों को खुश करना होता है, वो फ्लैटरी बड़ा करते. So what is flattery? An example of flattery. So you go to somebody's house, you have been called for food and dinner, right? और आपको सब्जी दी गई है खाने को, जो आपके स्वागत के लिए उस लेडी ने आज ही रेसिपी बुक से पढ़ के बनाई है कि शैलेश भैया आए हैं, शैलेश भैया आए हैं. तो आए तो शैलेश भैया के लिए जो है बढ़िया कुंवर जी जो भी आप बोलते होंगे उनको लेके साहब साली साहिबा ने पूरा जो है पूरा इंतजाम किया हुआ है. तो आज ही तरला दलाल की कुक बुक खोल के नया डिश बनाया गया है, जिसका नाम भी अभी इन्वेंट नहीं हुआ, वो डिश बनाई गई है. एंड शैलेश इज देयर. अभी साली के घर में आए तो ही इज आल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर फूड. नो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स. सो शैलेश कह रहा सर साली नहीं है, कोई बात नहीं, होता है लाइफ में ऐसा. सो ही इज देयर एंड दैट लेडी उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से बनाई है. एंड शी पोर्स दैट सब्जी, पुट्स द सब्जी इन थाली. तो शैलेश जो है पहला बाइट लेते हैं
और इनको सारे ग्रह याद आते हैं, नवग्रह की जो है यात्रा हो जाती है कि इसमें राहु भी है, केतु भी है, मंगल, सभी उसके अंदर। बट प्यार से बनाई है और इतने प्यार से सर्व किया है, तो मैं क्या करूं, कैसे बोलूं? तो अच्छा, जिसने जिसने बनाई होती है वो क्या करता है, वो उस बगल में खड़ा, क्योंकि अच्छा बाकी लोग हैं, उसकी सिस्टर है और बच्चे हैं, किसी को नहीं, वो मेन आइटम है, उसके बगल में वो खड़ी है, भाई इनके लिए सब्जी बनाई है। तो शी इज जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट, एंड द फर्स्ट निवाला जो मुंह में गया, उस निवाले के बाद शी इज एक्सपेक्टिंग अभी इनके चेहरे का भाव, और अभी ये क्या बोलेंगे। दिल का अच्छा है इसने 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 कभी किसी को ऐसा बुरा नहीं फील कराया। तो आज तो फिर ये तो नमक हरामी हो जाएगी ना, ये तो नमक आज तो खाना भी खा रहे हैं, तो कैसे मैं इसको बुरा फील कराऊं। फिर साली भी है, बहुत लफड़े हो सकते हैं आगे। तो ही टेक्स दैट बाइट एंड ही सेज, क्या नाम है साली का? नहीं, नहीं है, और नाम बताना। नहीं ना, अच्छा मुझे लगा नहीं है ना। ओह माय गॉड, ऑफलाइन ऑडियंस इज ऑसम। तुम मेरा दर्द समझ सकते हो, तुम लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हो तुम मेरा दर्द समझ नहीं सकते। ये विनायक जो बता रहा था वो मेरे साथ होता है, कि मैं जोक मारता हूं और मैं अकेले हंसता रहता हूं। और और ऐसी उसमें रहता हूं कि शायद तुम लोग भी हंस रहे होगे अपने अपने कमरों में, अपने अपने गाड़ियों में, ऐसा अज्यूम करके जोक मार के खुद ही हंसते रहता हूँ। आई एम जस्ट नेक्स्ट टू येड़ापना, मालूम है कि इफ somebody was to see me from behind, from somewhere outside, यार ये कैमरे को देख के कैसे हंस रहा है आदमी, ये कर क्या रहा है। सो दैट्स व्हाट आई डू। सो ही सेड नैना, मुझे समझ में आया नहीं है ना। एनीवेज, तब प्यार से बोला ना नैना, तो वो उसमें आज शैलेश का कांड होने वाला है। तो नैना खड़ी है बगल में, शैलेश जो है मुंह ले रहा है, तो जिया जी कैसी लगी सब्जी। अभी ये कहता क्या बोलूं, नैना जादू है तुम्हारे हाथ में। हाँ, यहाँ जादू है तुम्हारे हाथों में, और जादू है, ये बोला, और ये बोलना खत्म ही नहीं हुआ था कि एक और चम्मच बोला। अभी बड़ी मुश्किल से वो खत्म किया था पोर्शन शैलेश, बड़ी मुश्किल से, और एक और पूरा पोर्शन आ गया ना। शैलेश कहता भगवान अब ये अगर अंदर गया, जो पिछले एक हफ्ते मैंने खाया वो सब निकला होगा। बट दैट्स द वे इट इज, ही वाज फ्लैटरिंग हर, जेन्युइन अप्रिसिएशन नहीं था। अच्छा फ्लैटरी से क्या हुआ कि उस समय के लिए नैना को अच्छा लगा, नैना फेल्ट गुड, नैना से कहा जिया जी कमाल, आप ही सबसे अच्छे जिया जी हो मेरे, आप ही मुझे मेरे मेरी तारीफ करते हो, बाकी किसी को कदर नहीं है मेरी, वो ऐसा वैसा फील करेगी। बट द क्वेश्चन इज, हैज शी इंप्रूव्ड, हैज शी बिकम अ बेटर पर्सन? आपके उस अप्रिसिएशन से क्या वो अच्छी बन रही है? नहीं, उसको लग रहा है ये इससे अच्छी सब्जी बन ही नहीं सकती है, एंड दैट्स द वे इट इज। और अगर नेक्स्ट टाइम वो बनाएगी खाना वो, एंड समबडी सेज इसमें मजा नहीं आ रहा है, तुम्हें तो मेरा बिल्कुल पसंद नहीं आता हाथ, वो अपने हस्बैंड को बोलेगी, एक जिया जी हैं, जाओ सीखो शैलेश जिया जी से कुछ, तुम्हें तो मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर कुछ तुम्हें, सॉरी तुम लोग जैन लोगों को मुर्गी बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। बट somewhere what I want you to understand, when you flatter somebody you don't make that person better, but when you are genuinely appreciating, you are finding some quality, आप एफर्ट ले रहे हो, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप कहते हो कि ये सब्जी जो है नैना, इसका जो टेक्सचर है बहुत बढ़िया है, तो सॉफ्टनेस आई है सब्जी के अंदर, इसका मतलब पकी अच्छी है, लेकिन कहीं मसालों का कॉम्बिनेशन थोड़ा और अच्छा हो सकता, बट टेक्सचर बड़ा अच्छा है। आर यू जेन्युइन? यू हैव टेकन सम एफर्ट टू गो डीपर इनटू इट। आप सिर्फ फ्लैटरी का मतलब क्या, आपने दिमाग वापरा नहीं, आपने सिर्फ लिप सर्विस कर दी, हाँ कुछ तो बोलना है, बट इफ यू कैन गो डीपर इनटू इट, यू विल रियलाइज दैट
she will now understand, अच्छा ये texture अच्छा है, she feels good. अब next time she will do it in a better way with better combination of masalas. So a lot of us, we go into flattery. If you really want to become likable, see something good in the lives of people around. And seeing something good in the lives of people around will require attention. Seeing something good in the lives of people will require some involvement. And when you are involved and you are paying attention, आपको अच्छा क्यों नहीं दिखेगा? थोड़ी ना कोई इंसान इतना बुरा है कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो पूरा कोयला है, ये पूरा डार्क स्पॉट है, कुछ नहीं है उसके अंदर. लेकिन अगर आपके अंदर पहले वाली आदत है, कौन सी वाली? ट्रिपल सी वाली. तो अगर आपको पूरा व्हाइट बोर्ड भी दे दिया जाएगा तो वहां पर आप निकाल लोगे ना एक डॉट. इन द सेम वे, जब अप्रिसिएशन की आदत नहीं है आपको, तो आप सिर्फ ऊपर ही ऊपर अप्रिसिएशन करोगे. बट द डीपर यू गो, यू रियलाइज देयर इज सो मच गोल्ड इन ईच एंड एवरी पर्सन. सो मच गोल्ड. वो बोलते हैं ना कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार समय सही बताती है, राइट? इवन अ स्टॉप वॉच. तो एक जीता जागता इंसान, वो दिन में 1 बार सही क्यों नहीं होगा, 2 बार सही क्यों नहीं होगा? It is that time you have to catch the person. Hey, you did this right. So can you be the gold finder? Can you be the gold finder in the lives of people around? The more you will find gold, the more you will become likable. और आप ये अपनी लाइकेबिलिटी के लिए नहीं कर रहे हो कि आप लाइकेबल बन जाओ तो फिर मुझे लाइकेबल बनना है. ये बेसिक उससे अच्छा रिश्ता बनाने के लिए. दूसरी बात, अच्छा आज तक कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी किसी की तारीफ करी? कभी आप गए, अक्षय बैठा है, अक्षय का ने बनाए, ही इज इनटू बेकरी प्रोडक्ट्स. अभी भी है बेटा? products. So he's into bakery products. He makes some wonderful cakes and then muffins and things like that. तो आपने इसका मफिन खाया और आपको जनरली लगा यार बड़ा सॉफ्ट है, आपको जनरली लगा यार इसमें राइट अमाउंट ऑफ शुगर है, आपको लगा कि जिस तरह से ये बेक हुआ है ना, ये इसका जो पफीनेस आया है, ये स्पंज इज ऑफ द राइट टेक्सचर. ऐसे दबाओ तो स्पंज भी आ रहा है और मुंह में उसका एक ऐसा नहीं कि हवा खा रहे हो, स्पंज भी है और उसका हैवीनेस भी है, स्वीटनेस भी सही है. तो आप बोलते हो कि यार, यू डोंट से इट्स गुड, यू से यार दिस इज एक्चुअली द वे अ मफिन शुड बी. अगर आपने ऐसी तारीफ करी, कभी ऐसा हुआ कि इसने निकाला खंजर डाल दे पेट, तारीफ करते मेरे? Nobody has felt bad. Nobody has felt mad when they have been appreciated, provided the appreciation is genuine. Isn't it an amazing thing? और ये ऐसा नहीं कि आपको आज सडनली, आई एम टेलिंग यू समथिंग जो आपको आज तक कभी मालूम नहीं था. All of you knew this. All of you have a clarity on this. Am I right? All of you have been doing it in some way or the other. I'm just structuring it for you. तो जितना हो सके कंप्लेन, क्रिटिसाइज, कंडेम करना कम कर दो. That will make you see the beauty in people around you. Second, उसी का स्टेप आगे, start finding that beauty and start appreciating. अब इसका मतलब ये नहीं कि सड़क चलते किसी को रोका, सुन आज मुझे ना करना ही है तारीफ करनी है. मुझे समझ में आ गया लाइफ जो है ना, इट इज ऑल अबाउट हैविंग एफिनिटी विद पीपल. सुन, इट्स नॉट दैट, इट्स पीपल वी कनेक्ट विद. इसी को अगर हम आगे ले जाएं, द थर्ड प्रिंसिपल, द थर्ड which is even at a very higher level, very high level. Whomsoever you meet for a period of time, जिसके से मिलते जो एक लंबे समय का है, जो आपके लाइफ में लगता है कि हाँ भाई it's kind of it is more than an acquaintance, but even with acquaintance you can do it. Ask yourself, my interaction with him, सुनना ध्यान से इस बात, मेरा इंटरेक्शन उसके साथ, has it been able to arouse in him an eager want? क्या मेरा इंटरेक्शन से उसके अंदर एक eager want arouse हुआ to become a better version? Have I been able to arouse का मतलब जागृत करना. क्या मेरा वो 1 मिनट उसके साथ, 2 मिनट उसके साथ, 5 मिनट उसके साथ, क्या उस 5 मिनट में उसके अंदर एक eager want कुछ जागृत हुआ कि वो अच्छा बने,
The times when I'm there, I'm interacting with so many hotel guys. बैंकेट के बच्चे आते हैं, मिलते हैं. There are times when I interact with them. तो जब एक दो बार मुझे मिल जाता है कोई इंसान जो चलते हैं, उनसे बात नहीं करता, बट if I go regularly and I meet this person again and again, तो मेरा कभी उसको क्वेश्चन होता है, so when do I get to see you becoming the head of the banquets? When do I get to see you becoming the head of this? When do I get to see you becoming the banquet manager? अब वो बच्चा जो अभी आया है, फ्रेशर है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, बैंकेट्स में काम कर रहा है, मेरे इस सवाल से, when do I get to see you becoming the banquet manager? क्या होगा इससे? उसके अंदर एक बीज बो दिया ना. तो शायद उस बच्चे ने सपना ना देखा हो, लेकिन आपके उस डायलॉग से, हाँ यार ये तो है, ये. एंड द बेस्ट इज दैट somebody whom he is serving, वो चाहता है कि तुम अच्छे बनो. इससे बढ़िया बात क्या हो सकती? So people from whom you buy products, जो आपके वेंडर्स हैं, what if you were to arouse in them the want to become better? तो इस बार कौन सा अवार्ड जीतने का सोच रहे हो? नॉट आउट ऑफ टाउंटिंग कि साला इतना गंदा माल देता है तू. कभी कभी हम टॉन्ट करते हैं ना कि, बट ये जेन्युइनली सेइंग दैट देयर इज दिस अवार्ड, नेक्स्ट ईयर यू शुड विन दिस अवार्ड. ये आई थिंक दिस इज द क्वालिटी विच यू विल रीच टू. तो आपने उसके अंदर एक सिंसियर एक वांट जागृत करी. नाउ इफ यू डू दैट विद पीपल, मुझे बताओ, will you not become likable? There's so many times I talk and I always, मेरा तो ये होता ही है. So when do I see you becoming an entrepreneur? मैं बोलता हूँ, और कितने बन गए हैं, कितने बन गए. I'm not saying because of that statement they became an entrepreneur, but maybe for many that has been the starting point. तो आपको पूछना है कि in all your communications, पीछे मुड़ के देखो, उस कम्युनिकेशन में आप पूछो अपने आप से कि what have you been doing? Have you been unknowingly, unconsciously arousing the want from inside, that eager want from inside to become better, या unknowingly किसी की want पे आपने पानी डाल दिया? Unknowingly. मैं ये नहीं कह रहा हूं हम दिल से बुरे हैं, क्योंकि हम सब अच्छे हैं, लेकिन हमने ये समझा नहीं, और हमने इस चक्कर में we missed out on that. Online audience, sorry, I am not focusing that much on you today, but I am also talking to you, right? And you all are wonderful people, you know that. और मैं फ्लैटरी नहीं कर रहा हूं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, तुम लोग तो जबरदस्त लोग हो यार. I love you all, you know that. अब ये देखो, ये मेरी क्या बोलते हैं, सौतन. ये लोग बोल रहे हैं कि सर हमें सौतन वाला फील आ रहा है, यहाँ वहां ज्यादा टाइम दे रहे हो और हमें नहीं दे रहे हो. हम इतना दूर चल के आए आपके लिए, बारिश से झगड़ के, स्विमिंग करते हुए, सुबह की नींद से झगड़ के यहाँ आए. ये ऑनलाइन ऑडियंस से सर बिस्तर में बैठी होगी, सर लेटी होगी, घर में होगी, चाय पी रही होगी. हमें देखो, हम तो वेट कर रहे हैं चाय का. सर हाँ जी. Okay, what's the boundary between becoming a likable person and going into a nice guy? Okay. When you talk about a nice guy syndrome is you want to be nice to everybody. Nice का मतलब आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते. आप किसी को दिल दुखाने से अच्छा अगर मैं आप बोलूं कि nice guys, they don't make the world a better place. They are always on the verge of making this world a pleasing world around them. And the fact of life is that you cannot please
everybody. You cannot even please somebody all the time. जो nice लोग होते हैं ना, nice boss never makes great team members. A nice teacher never creates great students. A nice PM doesn't make a great country. You always have to ruffle some feathers, right? At the same time, you got to be genuine about what you see. तो मैं जब कह रहा हूं कि you got to ruffle some feathers, it does not mean कि आपने सिर्फ हिलाना है लोगों को, आपने genuine तारीफ भी तो करनी है. When people understand, see, you have to understand this, that when you are nice guy ना, आप उस समय की सिचुएशन को संभाल लेते हो, या उस समय की सिचुएशन को जो है आप एक हैप्पी गो लकी बना देते हो. But if you were to look back, if you were to look around, and maybe after some time, आप देखते हो पीछे मुड़ के, you will realize that यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो वहीं का वहीं है इंसान. Nothing has happened in his life. Nothing has happened in my life. So nice guys don't make a better world. They don't change the world. तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप ओवरबोर्ड जाओ और लोगों की तारीफ करते रहो. मैं आपसे कह रहा हूं, have the eye of an appreciator. अगर अप्रिशिएट करने को कुछ नहीं है तो फिर नहीं करेंगे ना. हम जबरदस्ती नाइस बनने के लिए, जस्ट टू बी नाइस इन द आईज ऑफ द पर्सन, हम कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे. हम जेन्युइन बात करेंगे. एंड ये आपको समझ में आएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि ये क्या लाइन क्या है, कि ऑलवेज बी अप्रिशिएटिव एंड ऑलवेज बी नाइस में डिफरेंस क्या है. सो अप्रिसिएशन, व्हेन यू डू जेन्युइन, you will only see things which are to be appreciated. When you are saying nice, you will speak nonsense. You will speak nonsense, good things. And good things are always. You will call a fat person, मोटा है, मैं किसी को बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं. अब जिसकी हंसी ज्यादा है वो समझ में आ रहा है. तो नाइस का मतलब क्या है? यू विल सी अ फैट पर्सन एंड यू विल से व्हाट अ हैंडसम मैन. Or you will see a fat lady, you'll say, what a beautiful, gorgeous woman. No. He can be a kind man. He can be a very energetic man. He can be a very lively, cheerful man. But he's not handsome, because don't make him stay that. She can be a very kind lady. She can be a very charming lady. बातों में तो you find the right things ना. आप सिर्फ नाइस बनने के लिए आप कुछ बोलते हो जो उनको अच्छा नहीं बना रहा है, या जो उनको उनकी उस स्टेट से जो है बाहर नहीं निकाल रहा है. Don't speak about it. That's what nice guys do. They just destroy the situation around them. So that's how it is. ये कौन है? सनी भाटिया. चाय और पकौड़ा अल्टीमेटली. चाय में अटका हो भाई मेरा अभी तक. चलो. So I spoke to you about 3 basic principles of affinity that you become likable. Pehla, CCC. Second, so avoid criticizing, avoid complaining, avoid condemning. Second, मैंने बताया आपको, have genuine appreciation. Third, जो बहुत ही सुंदर है, can you ignite in somebody? Can you arouse in somebody? Right? You know arousal, na? All married people, you know. Can you Ram. So can you arouse in somebody? Can you ignite in somebody a genuine, eager want to be a better version? Right? Now, it's not that every time you will do that, but can you do it most of the times? Most of the times. Another beautiful principle is, if you want to be likable, is be genuinely interested. When you meet people, be genuinely interested. You travel. Let's say you travel by flight. और अभी आपके पास 1 घंटे की फ्लाइट है, तो बगल में एक इंसान बैठा है, तो आप जो है, maybe you want to pass some time, तो आप उससे बातें करते. बातें हो गई. बातों में आपने उससे पूछा, उसने कुछ बताया, आपने कुछ बताया, and you have some good discussion happening. And फ्लाइट रुकी,
आप ऐसे निकल गए, आपने उसको ना बाय ना गुड बाय कुछ नहीं, इसका मतलब था यू यूज्ड हिम फॉर दैट 1 hour to pass your time. If you had communicated with him so well, then you could have at least smiled back at him. You could have actually, said goodbye to him, or you could have just walked with him to the luggage belt, or maybe you could have asked him, "Can he offer you a lift?" But you were kind of matlabi. तो आपने अपना मतलब निकाला, आप निकल गए, तो यू आर नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड, आप टाइम पास कर रहे थे. यू गो टू अ पार्टी एंड उस पार्टी में आप जब जाते हो, आपको 10 लोग मिलते हैं, तो आप पूछते हो, आप अलग अलग पूछते हैं कि आप पूछते हो नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, तो कोई बोलता है कि सर आई एम इनटू, आई गॉट अ ग्रोसरी शॉप, उसके कोई बोलता है सर आई भैया, कोई बोलता है शैलेश भाई मेरा तो मेडिकल शॉप है, ओके, कोई बोलता है सर मैं तो आईटी में काम कर रहा हूँ. तो ऐसा करके शैलेश सबसे पूछ रहा है कहाँ भी क्या हो रहा है. तभी एक बंदा बोलता है आई एम इनकम टैक्स ऑफिसर, हेलो सर हाउ आर यू. सडनली इंटरेस्ट आ गया. अभी 10 लोग मिलके गए, किसी ने बोला बेकरी का हूं, अच्छा ठीक है, किसी ने बोला मैं मेंटोर हूं, ओके. जैसे ही मुकुंद दूध आया, इनकम टैक्स ऑफिसर, हेलो दूध साहब कैसे हैं. नेक्स्ट लाइफ आप आईटी में. सो जितना प्रेम, जितना इन्वॉल्वमेंट, जितना ऐसा आपको सडनली आपके आंख कान सब खुल गए, तो पहले में क्यों नहीं खुले. यू इंटरेस्ट नहीं है ना आपको. सो as much as possible, be genuinely interested. The more interested you are, the more you'll become likable ना. आप ऑफिस आते हो and you talk to, so let's say you talk to your office boy. एक है कि गुड मॉर्निंग हो गया, या आपने जो भी उसने विश किया आपने विश कर दिया. एक है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, तो आप पूछो ना, भाई संजय तेरी बच्ची कैसी है, उसकी तबीयत खराब हुई थी, हाउ शी. आप जब आप पूछते हो, सडनली इट्स अ जेन्युइन कंसर्न व्हिच इज देयर, बिकॉज ये बात तो हुई, दिन काफी हो गए, बट आपको आज भी ध्यान में है, यू जेन्युइनली इंटरेस्टेड. सुने ना, उसके साथ मजबूरी है कॉन्वर्सेशन करने की. अभी इसका ये नहीं पूछा तो पानी नहीं पिलाएगा. इट्स नॉट अ मजबूरी ऑफ फ्रॉम योर साइड, इट्स अ जेन्युइन कंसर्न व्हिच यू हैव. सो इफ यू बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड, you will see a lot of people will start liking you. कितनी वाजले, ओह 8:15 झाले. एंड ऑनलाइन ऑडियंस, आई वांट टू से गुड बाय टू यू, बिकॉज मेरा आपसे वादा जो है ये 8:15 का ही था. और ये तो भुक्कड़ लोग बैठे हैं सामने मेरे, ये तो जब तक चाय पकौड़े खाएंगे नहीं जाएंगे नहीं ये लोग. एंड वी गोना हैव सम ऑसम टाइम. और मैं आपको जलाना चाहता हूँ, आपको मैं आपके अंदर जेलेसी की भावना क्रिएट हो, भगवान आप इसको एक्सपीरियंस करें, आज दिन भर तड़फें. एंड आप अपने घर में अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को जगाएं, हिलाएं, बोले पकौड़े बनाओ, चाय बनाओ, भगवान ऐसा हो आपके यहाँ. लेकिन love you for being there, love you for being there for the 158th Happy Minds. We'll see that maybe once in 2 months, once in 3 months, we can have a combination of such, कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन करें. आज हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था, डूइंग इट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. एंड आई थिंक थोड़ा सफल रहा. क्या बोलते हो आप लोग? तुम लोग मेरे साथ थे, और आप लोग भी मेरे साथ थे, जितना भी. हाँ, सो क्या बोलिए, सिया इज फ्रॉम यूएस. He says Mangal is Sia's father. I think miss you, sir. And oh, we like the hybrid model the best. अरे वाह वाह, क्या बात है, तुम लोग तो मुझे सर मोटिवेट कर देते हो. चलो, so all the best to you. Make sure you make a great week. You got a weekly shot for yourself, and a weekly shot is nothing else, a shot which will make you live your week in a much better, much more powerful way. So मैंने आपको एक 3-4 प्रिंसिपल्स बताए हैं of affinity. एंड बाकी प्रिंसिपल्स नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. देयर आर 3-4 मोर वंडरफुल प्रिंसिपल्स ऑफ एफिनिटी. अभी मैं इन लोगों की शेयरिंग लूंगा, एंड देन वी गोना हैव सम ऑसम टाइम लिसनिंग टू द शेयरिंग. एंड माय लाइफ की कुछ शेयरिंग होगी, कुछ उनके बैचेस शेयरिंग होगी. बड़ा मजा आएगा हम लोग को, बहुत मजा आएगा. ये मजा जो है सिर्फ ऑफलाइन लोगों के लिए है, जो मेरे साथ यहाँ. सो
जिससे आपके अंदर भी तलब बने कि मे बी यू कैन आल्सो कम फॉर ऑफलाइन सेशंस जब भी होगा. So we will. I would love to see as many as possible from all of you to be there for the offline, and so that we have. क्योंकि जो you मेरे से पूछो, दिल से मेरे पूछो कि जो मुझे वाइब्रेशन चाहिए होते हैं ना एज अ स्पीकर, आई एम देयर, तो मुझे वाइब्रेशंस तो ऑफलाइन से मिलते हैं ना, या ऑनलाइन से कुछ नहीं मिलता है. आई एम जस्ट, मैं अभी ये लोग मुझे देख रहे हैं तो इनको लग रहा है ये हमें क्यों नहीं देख रहे हैं, ये यहीं क्यों देख रहे हैं, क्या मेरी मजबूरी है. और मैं भी कहाँ देख रहा हूँ, वो एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ कैमरा, उसी में मैं उसी में देख के जा रहा हूँ, फोकस. तो मेरी आंखें ऐसी दर्द करती है ना बाद में कि कितना फोकस ऐसा करने का. बट स्टिल आई लव यू ऑल फॉर बीइंग देयर फॉर HM आफ्टर HM आफ्टर HM, एंड लव यू फॉर बीइंग देयर. Make this world a better place. Make yourself more likable. Make yourself more beautiful, so that people look at you, people talk about you, bring qualities in you which will make people appreciate you. And all said and done, ये सब होगा, उसके बाद भी ध्यान में रखना, this is what you are not. So आप ये नहीं हो, फिर आपके मन में सवाल आएगा मैं कौन हूं. This is life. This is life, right? तो फिर वो लाइफ की शुरुआत होती है. तो अभी तो हमने जीना शुरू भी नहीं किया है, बिकॉज जो हम सोच रहे हैं वो जीना है, वो जीना नहीं है, वो सबका एक्यूमुलेशन है इस दुनिया का, और वो हम नहीं है. सो द डे वी अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट वी आर नॉट, that day the real life will start for all of us. So love you, God bless you, and I'll see you next HM with some more beautiful qualities of becoming more likable. Till then, stay alive, stay awake, stay energetic, and God bless you. हाँ जी, चलो तेज, मैं आप लोग को पढ़ नहीं पा रहा हूँ, so I'm sorry if I have to